आज हम बात करेंगे, जैसा कि ग्रुप में पहले ही हमने पोस्ट किया था। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ एंड व्हाट टू स्टडी फॉर एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम, फॉर एसबीआई पीओ मेंस एंड फॉर एसबीआई पीओ मेंस really about we are talking about general awareness section. Okay, general awareness section. It is actually not the general awareness. It is banking, economy, everything is into it. Okay, we will not disturb our time much in talk and we will be moving onwards. It is about me. I won't talk again about myself, what I am doing, what presently, what are the certifications I have passed, etc. Because I have already told it in a number of videos. You can also go through the PDF and know about me. If you are much more interested about me, you can directly message me to our Telegram. Okay, before we go to our discussion of the subject matter, we must understand the pattern of SBI PO examination and thereafter we will move to our discussion point. हम पहले ये देखेंगे कि SBI PO का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। सिलेबस तो छोड़ो, पैटर्न देख लेते हैं। सिलेबस तो आगे हम डिस्कस करेंगे। पैटर्न क्या है कि उसमें क्या पूछा जाएगा। वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस जनरल इकोनॉमी सेक्शन, दो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. There is three sections: general, economy and banking. You will see that there are 60 marks, but these are not the categorized at 20. Even there may be a case that 60 marks is asked from the only economy and others are zero, or 60 is asked from the banking only. Although it didn't happen in time, तो ऐसा हुआ नहीं है कि कुछ हो, बट ये है कि चीजें किसी सेक्शन में ज्यादा और किसी सेक्शन में कम आ सकती हैं। आप इसको इक्वली मान करके नहीं चलना है। इस वजह से अच्छा, जब ये इक्वल नहीं है, इस वजह से आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। यू हैव टू prioritize एवरी सेक्शन इक्वली, बिकॉज any number of questions can be asked. Okay, and you will have to answer this. If you are leaving some sections and the questions are asked from those sections, you won't be able to answer. कुछ भी आंसर नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज गेसिंग इज नॉट ए थिंग व्हेन देयर एग्जाम इज concept or theoretical based, because there is no reasoning involved, or there is no calculation involved like quant and reasoning, that you will come through a decision and put your options as yes or no. How and what to study for the GA section? Okay, first we will talk about GA section of SBI PO Mains. Although it is quoted that general economy and banking awareness will be, general economy means general economy and banking will be the syllabus, but reality is quite different from this. Okay, SBI syllabus is very easy as compared to CBO GBO scale 2-3 exams. ठीक, तो सही बात है, क्योंकि 2 and 3 में जो है वो कोर बैंकिंग पोर्शन टफ आता है, और जो पीओ में बैंकिंग पूछा जाता है वो जनरल बैंकिंग होती है। जनरल बैंकिंग जैसे रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है। हालांकि फॉरेक्स से क्वेश्चन कभी एसबीआई पीओ में आया नहीं है, सेबी और वो भले पूछ ले, बाकी कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो इस तरह से आप समझो कि इसका, अब अच्छा प्रॉब्लम क्या है एसबीआई पीओ में। आप सीबीओ जीबीओ का पेपर अच्छी तरह से कर सकते हो, बट एसबीआई पीओ का क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इट इज लेंदी एंड अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड मतलब वो कहाँ से क्या पूछेगा, कोई पैटर्न नहीं है। कभी हो सकता है आपको दो चार एब्रिविएशन ही पूछ ले कि इसमें इसका क्या है, या एनबीएफसी में बी क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इस वजह से जब किसी एग्जाम में सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं होता है, तो एक्चुअल में आप उस एग्जाम को बोल सकते हैं कि दिट इज क्वाइट डिफिकल्ट एग्जाम। सीबीओ जीबीओ में तो आपका स्पेसिफाइड है कि जनरल बैंकिंग आएगा, आप उसमें पढ़ लोगे और उसमें करके आओगे, अच्छा स्कोर कराओगे। बट पीओ का करने के लिए सिलेबस इज क्वाइट अनस्पेसिफाइड, मीन्स ब्रॉड सिलेबस। इट कवर्स
questions from almost all fields of current affairs, whereas the CBO GBO exam is very specific. Therefore, a prudent approach is always required to study sections. अभी यही बताया मैंने कि जो पीओ का एग्जाम होता है उसमें आप किसी भी फील्ड को छोड़ नहीं सकते। इवन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अभी ये बताओ, ए नंबर ऑफ पोर्टल्स, अगर मैं आपको एक वीक एक महीने में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं सबका एक पीडीएफ बना दूं, और वो 200 पेज का 50 पेज, इवन 60 पेज इज आल्सो टू मच, 2 पेज एवरी डे, तो वो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इस वजह से कंटेंट पे मत, नंबर ऑफ पोर्टल्स आर देयर कि आप उसमें फंस जाओगे, यू विल बी ट्रैप्ड, और आप एक महीने का भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जिस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट द थिंग्स यू स्टडी। अभी आपको 100 न्यूज दिया, 100 न्यूज हम दे रहे हैं, तो आप उसमें से अपने आप से गेस कर सको, एनालाइज कर सको कि एग्जाम के लिए व्हाट आर द इम्पोर्टेंट। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। ठीक, तो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड मेयरली विद बैंकिंग, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो जो बैंकिंग का सेक्शन है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो क्या है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस एंड जनरल, इसको इन दोनों को मैंने एक में कर दिया। देखो, इकोनॉमी एंड बैंकिंग को एक में कर दिया क्योंकि इकोनॉमी बैंकिंग सेम ही है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो सब चीजें बैंक के थ्रू चैनलाइज हो रही हैं। ठीक है, और उसको आप एक में करके पढ़ भी लोगे, दैट इज गुड। और सेकंड इज द जनरल अवेयरनेस। अभी इसके बाद इसमें क्या है, एवरी ऑफ दिस हैज 2 सबसेक्शंस, मतलब जो बैंकिंग है उसमें स्टैटिक बैंकिंग है और करंट बैंकिंग है। स्टैटिक जनरल अवेयरनेस है, करंट जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी स्टैटिक है और वो है। नाउ वी विल लुक इनटू द डिटेल्ड वे अबाउट हाउ एंड व्हाट टू स्टडी फॉर स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। के लिए क्या करना है, आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पता होना चाहिए, सी केवाईसी पता होना चाहिए, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होती है, रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, ये सब आपने आईबीपीएस पीओ के तैयारी के दौरान पढ़ा होगा। ठीक है, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है वो मैं बना देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या थी आरबीआई की, अभी उसने रेट अगर हाइक किया हुआ है या रेट उस समय कितना है ये पढ़ना है। लीगल आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफायर, ये नहीं आया हुआ है अभी तक एग्जाम में, और मुझे नहीं लगता ये आपको जानने की जरूरत है। लेकिन कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग की लिमिट की अगर कोई गाइडलाइन है तो वो आपको पढ़नी है। ठीक, ईसीबी कितना आप ले सकते हो, वो उस तरह से आपको पढ़ना है। दूसरा, अच्छा, सरफासी नहीं पढ़ना है, लोक अदालत जैसे ये सब जो आपने पढ़ा है नहीं करना है। आईबीसी कोड नहीं पढ़ने हैं, ये आप नोट करते जाओ क्या चीजें नहीं पढ़नी, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं इसको। ठीक है, सिरसाई भी नहीं पढ़ना है, हालांकि ये सिरसाई और ये सी केवाईसी एक ही चीज है। ठीक है, अगर रिलेट करोगे, सिरसाई ही मैनेज कर रहा है सी केवाईसी को, तो वो चीजें आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। जितने भी बैंकिंग टर्म है, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है। ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, मुद्रा लोन अभी तक पूछा नहीं गया है, मुद्रा लोन की शिशु, तरुण और किशोर की जो कैटेगरी है, अगर आप वो जान सकते हो तो जान लो, क्योंकि वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था। ठीक है, इनिशियली पूरा मोदी जी के टाइम जो है ये हुआ था, तो ये आप जान लो। ऐसे अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आने वाली हैं। ठीक, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है, बहुत जगह पे आप पढ़ाया जा रहा है, ये चीजें नहीं पढ़ना है। हाँ, अकाउंट डॉर्मेंट इनएक्टिव वाला आप पढ़ लेना, क्योंकि ये जनरल बैंकिंग में आता है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है किसी भी तरह से। प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, ये सब पढ़ लेना, ये जनरल बैंकिंग से तो नहीं है बट ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है,
अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कभी करेंसी चेस्ट की गाइडलाइन आ सकती है, या कितने एटीएम हैं, कितने एनबीएफसीज हैं, ये भी, लेकिन अभी तक ये ज्यादा पूछा नहीं गया है। हाँ, ये जनरल बैंकिंग पोर्शन में आता है। जनरल बैंकिंग, आरबीआई एक्ट नहीं पढ़ना है, आरबीआई एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अबाउट आरबीआई पढ़ना है, मैंने पहले बताया अबाउट आरबीआई, ठीक है। कब उसने उसका हेडक्वार्टर कब ट्रांसफर किया गया, किस एक्ट के थ्रू आया। अच्छा, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, उनको तो नहीं पता होगा। जो यूपीएससी के होंगे उन्हें पता होगा कि 1973 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसी टाइम ये आरबीआई की बात हो गई थी, ठीक है। इनऑपरेटिव डॉर्मेंट अकाउंट, अनक्लेम डिपॉजिट, ये हमने पढ़ा रखा है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कुछ स्कीम है जो आपको देखना चाहिए, वो जनरल बैंकिंग के थ्रू आती हैं, उन्हें आप देख लेना। अगर पूछा जाए तो ठीक, नहीं पूछा जाए तो भी ठीक। सुकन्या समृद्धि, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मतलब सीनियर सिटीजन का जो सेविंग स्कीम है, ये। और फॉरेन एक्सचेंज में तो कभी पूछा नहीं गया है। फॉरेन एक्सचेंज में अगर जनरल नॉलेज में जो आता है, नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड और स्वैप आता है, ठीक है, ये आप देख लेना। अगर टाइम हो तो देखना, नहीं तो ये तो मुझे नहीं लगता एसबीआई पीओ में ये पूछा जाएगा, मेरे हिसाब से तो इसके लिए भी कंप्लीट ना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे हैं कि जैसे वीडियो केवाईसी, इसके लिए कौन सा केवाईसी का डॉक्यूमेंट है, कौन सा ऑफिशियली वैलिड। एक जान लो, पैन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं आता है। पैन बैंक आपसे मांगती जरूर खाता खोलने के लिए, लेकिन पैन ऑफिशियली वैलिड नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं आता है, ये पूछ सकता है। ये जनरल बैंकिंग है, केवाईसी से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन है वो जनरल बैंकिंग में आती हैं, ठीक है। सीटीएस, चेक क्लियरिंग सेक्शन ट्रंकेशन, ये जनरल बैंकिंग में आता है, ये आपको पढ़ना है। तो अभी हमें लगता है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पढ़ना क्या है। नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। बिल्कुल डीप बैंकिंग, कोर बैंकिंग नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको पढ़ना है जनरल बैंकिंग। अभी जनरल बैंकिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि जो ऐसी चीजें जो जनरल जनरल वे में इशू की जाती हैं, और उसका कोई एप्लीकेशन आपको केवल बैंकिंग में ही नहीं है, आपको अपने तरह से भी उसको जानना चाहिए। जैसे इनएक्टिव अकाउंट हो गया, कब आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, कब एनआरओ अकाउंट कौन सा होता है, एनआरआई कौन होता है, ये तो जान लेना भाई, एनआरआई कौन होता है जरूरी है जानना, ठीक है। पूछ सकता, अभी पूछा नहीं है बट किसी भी दिन पूछ लेगा और आप बता भी नहीं पाओगे, ठीक है। बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, तो हमें लगता नहीं कि पूछा गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही कोर बैंकिंग है, तो सिंपल सा इसका सिलेबस एकदम सिंपल है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड, भीम से रिलेटेड, डिजिटल बैंकिंग का जो भी है वो सब आपको पढ़ना है। एनएसीएच आपको पढ़ना है। व्हाइट लेवल, ब्राउन लेवल एटीएम क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। स्पीड क्लियरिंग क्या होती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या है, इसके कितने ऑफिसेस हैं, क्या है, ये आपको पढ़ना है। और ये सब चीजें जो हमने बताया है वो सब टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप फाइल सेक्शन में जाओगे आपको सब मिलेगा, सब चीजें हमने शेयर कर रखा है, बता रखा है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया स्टैटिक बैंकिंग को हमें कैसे हैंडल करना है। करंट बैंकिंग, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ में आया। ये आप थोड़ा सा कम भी देखोगे तो चलेगा, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मंथ वाइज जो बैंकिंग न्यूज है, बैंकिंग, अच्छा बैंकिंग न्यूज कौन सी, बहुत सारी बैंक आता है, बहुत सारी। स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर कोई एक्विजिशन है, मर्जर है तो ठीक है, नहीं तो बाकी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च हुए हैं, पोर्टल्स कौन से लॉन्च हुए हैं, आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस करी है। हाँ, बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, अगर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो मत पढ़ना, क्योंकि इतने लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं
इतने लाइसेंस कोऑपरेटिव बैंक्स के हो रहे हैं, वो कितने याद करोगे? जो हो सकता है जिस दिन जाओ जो ऑप्शन में दिया है चार, उसमें से एक का कैंसिल हो चुका रहे, ऑप्शन दो हो। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं, आप बैंक लाइसेंस कैंसिलेशन नहीं पढ़ सकते। वैसे ज्यादातर लोग कई बार पढ़ के गए हैं, बट वो आता नहीं है। अगर कोई अच्छा कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस कोई, दिस इज नॉट ए बिग डील, तो वो आरबीआई सर्कुलर ऑफ 1 ईयर आपको पढ़ना है, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया है। और उसमें देखो, ग्रुप में जो शेयर किया है हमने आरबीआई सर्कुलर, उसमें देखो एक मैंने लिखा होगा सजेस्टेड रीडिंग, ठीक है। सजेस्टेड रीडिंग जो है वही है आपकी जनरल बैंकिंग, ठीक है। तो अगर आपने सजेस्टेड रीडिंग खत्म कर लिया तो आपका जनरल बैंकिंग वाला पोर्शन स्टैटिक बैंकिंग का अच्छा, स्टैटिक बैंकिंग में क्या और आप क्या पढ़ सकते हो स्टैटिक बैंकिंग में? और आप जो पीओ के एग्जाम के टाइम पढ़ते थे वो सब चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, एसएलआर हो गया, कैपिटल मार्केट में क्या लिमिट होती है ये पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आपको, अच्छा, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए अभी जो गाइडलाइन इशू है वो पहले से ही ग्रुप में शेयर्ड है, उसके लिए आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी कमेटी थी, बैंक की टैगलाइन तो अभी तक इसमें तो नहीं पूछा गया, मुझे लगता नहीं है। अगर पूछेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आपका, बैंक रेट क्या है, एमआईसीआर क्या है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर, बैंक रेट क्या है, ठीक है। एमसीएलआर क्या है, एमसीएलआर पूछ लेगा, सी क्या है, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये आपको जानना जरूरी है। नेशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आरबीआई ने कब नोट इशू किया था, फर्स्ट इशूड कौन सा नोट हुआ था आरबीआई का, बताओ। हालांकि ये भी नहीं पूछता, लेकिन जनरल बैंकिंग में ये चीजें आपको जानना जरूरी है। देखो, वी आर नॉट गेसिंग द पेपर, हम यहाँ पर पेपर नहीं गेस कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। सिलेबस ज्यादा है, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम कब आया था इतना ही पढ़ लेना, और कितना अमाउंट है ये पढ़ लेना, वही बहुत है। उससे ज्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। बेसल नाम्स कब आया ये पढ़ने को पढ़ सकते हो, बेसल नाम्स की कब आया ये पढ़ सकते हो। चेयरमैन कौन कौन से हैं, किसके हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट एनबीएफसी इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या होगी, ये पढ़ सकते हो। टाइप ऑफ बैंकिंग क्या है, नैरो बैंकिंग क्या है, शैडो बैंकिंग क्या है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। पेमेंट बैंक आ गया तो कौन से प्रमोटर इसके हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आपको जनरल बैंकिंग में समझ में आ गया ना। अब देखो, अब कोई आपको एक जा करके करंट रेशियो पढ़ाने लगे, क्विक रेशियो पढ़ाने लगे, कंपनी लॉ पढ़ाने लगे, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाने लगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है, कभी नहीं आएगा वो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके पास सब, अगर आप 500 पेज का जीए ही पढ़ोगे तो क्वांट कब पढ़ोगे और रीजनिंग कब पढ़ोगे? और अगर ये दोनों एकदम से कमजोर कर लिए तो सिलेक्शन तो होना नहीं है। ये तो कम से कम एवरेज या एबव एवरेज तो होना ही चाहिए, और अगर एवरेज है आपका ना ये क्वांट रीजनिंग, तो आपको जीए में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वांट रीजनिंग को अच्छा रखना है आपको, मेहनत करो। क्वांट रीजनिंग कहीं भी सिलेक्शन के लिए चाहिए ही, वो पढ़ो, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, वो मेहनत करो। और इसके साथ ही अगर, हाँ, ये है कि थोड़ा सा कभी मिस होता है, कभी पजल नहीं सेट हो पाती, ऐसे कंडीशन में है आप, तो आप उस चीज को जनरल अवेयरनेस सेक्शन और इंग्लिश इन सबको मजबूत करके आप कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको करंट बैंकिंग अवेयरनेस में आप समझ गए सब, मंथ वाइज बैंकिंग इन न्यूज और आरबीआई सर्कुलर, ये जो दो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लॉन्च और ये सब तो पूछता ही है। तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं होते, और आप समझ भी सकते हो, पढ़ते पढ़ते आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये इसमें देखो क्लियर कट मैंने बताया है कि यू में लीव दो सर्कुलर विच आर
कोर बैंकिंग मतलब क्रेडिट सेक्शन से रिलेटेड अगर बहुत ज्यादा कोर बैंकिंग है, कितना लोन देना है क्या करना है, तो वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है। अदर जनरल बैंकिंग टॉपिक हमने बता ही दिया है। अब आते हैं स्टैटिक जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आते हैं। स्टैटिक जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप देखो वो कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए अभी आप देखो नेशनल पार्क पूछ सकता है, हो सकता है आप जिस नेशनल पार्क को याद करना छोड़ दिए हो वही पूछ ले। ठीक है। नेशनल पार्क भी पूछा जाता है ना, तो अगर आप वही पूछ लेगा तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें जो है कि जो स्टैटिक जनरल अवेयरनेस में आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा पार्क कहाँ पे है, या कोई मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, या कोई फॉल कहाँ पे है, या कोई डैम कहाँ पे है, तो ये इसको स्टैटिक जनरल अवेयरनेस नहीं, इसको कहते हैं जनरल नॉलेज। ये आप अगर छोड़ भी देते हो ना कोई टेंशन नहीं है। इससे मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे मैक्सिमम। तो 2 क्वेश्चन आप ये तो मैं कह रहा हूँ छोड़ ही दो। ठीक है। फॉल कहाँ पे है, वाटर ये क्या नाम है, नेशनल पार्क्स कहाँ पे है, म्यूजियम कहाँ पे है, कोई लाइब्रेरी कहाँ पे है, ये सब चीज ये छोड़ दो। हाँ, जो लोग एसएससी की तैयारी भी साथ साथ में कर रहे हैं उनको ये पता होगा, तो वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पे टाइम मत दो ज्यादा, क्योंकि आपका 30 to 30 क्वेश्चंस तो मिनिमम ये करंट बैंकिंग से रिलेटेड आ जाएंगे। बैंकिंग और अदर सोशल इश्यूज को आप मिलाओगे तो करंट से आ जाएंगे। इसलिए स्टैटिक पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। शॉर्टकट में यही बता देता हूँ आपको, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस मत करो, स्पेशली जनरल वाले पार्ट पे। चलो बैंकिंग वाले पार्ट पे अगर स्टैटिक पे फोकस किया है तो वो आगे जाके आपको समझने में भी हेल्प करेगा कि क्यों रेपो बढ़ाया घटाया है, या क्या फायदा होगा, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, तो ये सब चीजें। लेकिन करंट जनरल अवेयरनेस में न्यूज रिलेटेड टू गेम एंड लिटरेचर पूछता है। अवार्ड्स, अच्छा अब गेम और लिटरेचर में बहुत सारे अवार्ड हैं, तो जो ऑल इंडिया लेवल के हों, या जो इतने ज्यादा न्यूज में आ चुके हों, जैसे नीरज चोपड़ा का न्यूज में आया था, आप जानते हो, तो ऐसे न्यूज, ऐसे लोग जो न्यूज में पर्सन इन न्यूज बन जाते हैं, वही आपको जो है पढ़ना है। ठीक है। लिटरेचर अवार्ड्स, लिटरेचर अवार्ड बहुत सारे हैं, तो ऑल इंडिया लेवल के जो अवार्ड हैं आपको वही उतने याद रखने हैं। ठीक है। वो भी फर्स्ट किसको दिया वो, या पद्मश्री भी अभी मिला था कई लोगों को, तो लिटरेचर में किसको मिला, खेल में किसको मिला, ये आप याद करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर आप माइंडसेट में अगर आप जानते भी हो तो आप ऑप्शन क्लिक कर लोगे वहां पे, उसके लिए नोबेल प्राइज के लिए बारे में जानो, स्पेशली इकोनॉमिक में किसको मिला है तो जरूर जानो, इकोनॉमिक्स में किसको मिला ये तो जानना ही है। अच्छा, कोई अगर इंडिया का कोई बंदा इंडियन अगर कहीं पे फर्स्ट पोजीशन पा रहा है, या किसी के चांसलर बन रहा है, या कुछ बन रहा है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना जरूरी है। इंटरनेशनल प्राइजेस जितने हैं वो आपको लिटरेचर मिल रहे हैं। ठीक है। या जैसे किसी को बुकर मिल गया, ठीक है, तो वो अभी किसी को एक को मिला है लेडीज, वो भी आप पढ़ लेना कौन सा है, आई एम नॉट गेटिंग इट करेक्टली। तो वो न्यूज में था, वो कई 4 to 5 डेज न्यूज में था। तो someone from यूपी और इटावा गॉट दैट न्यूज, गॉट दैट प्राइज, आप वो पढ़ सकते हो। मतलब आप ये है कि अगर आप उसके टच में रहोगे तो इसको याद करने के लिए मत पढ़ो, जस्ट एक बार पढ़ लिया तो भी सही है, आप वहां पे कर ले जाओगे। रैंकिंग में रिलेटेड, रैंकिंग में क्या है, अगर हंगर से रिलेटेड है, हैप्पीनेस, मतलब वो अच्छा, दूसरा कौन सी रैंकिंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, अगर वर्ल्ड बैंक इशू कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस इशू कर रहा है, या आईएमएफ इशू कर रहा है, या ऐसे जो है इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इशू कर रहे हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसको कर सकते हो। दूसरा सोशल इश्यूज, हाँ, फर्स्ट इन पोजीशन, दैट कि फर्स्ट वुमेन किसी चीज में हुआ हो, या फर्स्ट मैन कहीं पे आया हो रिसेंट न्यूज में, कि उसने ऐसा कोई गेम खेला, अभी कोई 7,000 रन बनाया, वो कौन सा नंबर का प्लेयर है। ठीक है।
तो इस तरह के न्यूज जो है वो आपको, अच्छा आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना है कि उसका नाम लेके आप एक बार जान गए उसको लीव कर दो, यू आप वहां पे करेक्ट अटेम्प्ट कर दोगे, जब ऑप्शन में वो दिख जाएगा कि हाँ हमने यही पढ़ा था, यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। व्हाट आर लेस इम्पोर्टेंट, कोर बैंकिंग पोर्शन छोड़ दो, एनआई एक्ट, बीआर एक्ट, ये सब छोड़ दो, बिल्कुल नहीं आएगा। कारपोरेट कंपनी ला ये भी बता चुका हूँ, ये उसमें भी नहीं आएगा, सिडबी का जो एग्जाम आया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज यू में लीव इट इफ स्टडिंग एट फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हो तो छोड़ दो। स्पॉट फॉरवर्ड ये सब आपको समझ में आने वाला नहीं है, और आएगा भी नहीं, एग्जाम पीओ में इतना आता भी नहीं है, कभी नहीं पूछा गया, आप देखो उठा के पेपर। न्यूज रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, मार्केटिंग कंपनी और टेक्निकल कंपनी से रिलेटेड ये छोड़ देना जो जनरल अवेयरनेस में है। अदर टॉपिक्स डिटेल्ड इन वीडियो, तो अदर टॉपिक्स हमने बता ही दिया है आपको किस तरह से और क्या करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या करते हैं, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है जनवरी से लेकर के आज तक का। गवर्नमेंट स्कीम अगर फार्मर पे है और सोशल इश्यूज पे है तो आप पढ़ सकते हो, या कोई इनॉग्रेशन किया हो, या कोई स्टेट में कोई ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशंस का इनॉग्रेशन किया हो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। करंट न्यूज रिलेटेड टू इनॉग्रेशन स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी एंड दो टर्म नॉट इम्पोर्टेंट, जीडीपी, ये पढ़ सकते हो, ये सिडबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। आरबीआई सर्कुलर पहले भी बता चुका, जनवरी 2022 से लेकर के अभी एग्जाम तक आपको पढ़ना ही है। न्यूज रिलेटेड टू मर्जर एंड इक्विजिशन, कौन से बहुत सारे मर्जर हो रहे हैं ऑफ बिग कंपनीज स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट, ग्रीन एनर्जी, इससे अगर रिलेटेड है तो पढ़ना है, नहीं तो अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बूस्टिंग इकोनॉमी, अभी तो ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है इसने, मेक इन इंडिया है उसके बारे में आप सब जानते ही हो। तो ये चीजें आपकी कवर हो गई, आपको इसी तरह से पढ़ना है। दूसरा, देखो, ये गेस्ट पेपर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको कहीं से आपने जीए का कोर्स लिया या कुछ भी किया, 300 पेजेस दे दिया, आप 300 पेजेस इजिली बताओ, नहीं, अगर आप 300 पेजेस जीए पढ़ ले रहे हो तो देन यू डोंट प्रिपेयर फॉर बैंकिंग, यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू हैव मच मोर देन दैट, ये 300 पेजेस नहीं पढ़ पाओगे। और उसमें ऐसी भी न्यूज हैं जो किसी काम की नहीं है, जस्ट उन्हें पेज बढ़ाना है, उनको पेज बढ़ाना है बस, उनको ये दिखाना है कि हमारे कंटेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो ये देखो, कोई अगर तुम ही ना, मतलब यू आर ए स्टूडेंट बट यू कैन इजिली नो दैट इफ यू विल फोकस ऑन मेकिंग द नोट्स ओनली फॉर 1 year फॉर एवरी स्मॉल थिंग, then from where the question will come, obviously the question will come from that news only. Then it is not to boast of something that I have made that material and the question is coming from. How much content you provided, the percentage, the percentage. आपने 1000 पेज का बुक दिया, उसमें से 10 क्वेश्चंस आए, और किसी बंदे ने 20 पेजेस का बुक दिया, उससे 5 क्वेश्चन आए, हु इज हु इज गुड? चलो आपने 300 पेज का ही दिया, 300 का पेज का दिया, 300 क्वेश्चंस में, पेजेस में, एक मंथ में आपके 10 क्वेश्चंस आ गए। किसी और ने 20 पेजेस का दिया, उसको 4 क्वेश्चन ही आए, देन ऑल्सो इज गुड। 100 क्वेश्चन में इसका 20 हो जाएगा, तो उस तरह से समझो। आपको ज्यादा टाइम नहीं है, आपको आपको और क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, क्वांट पढ़ना है, आप सोचो रीजनिंग का पजल दो तीन एवरीडे करना ही है कि नहीं करना है, उसमें टाइम जाएगा। क्वांट की स्पीड बनाना है कि नहीं बनाना, टाइम जाएगा, तो कब पढ़ोगे कितना? तो इसलिए प्रूडेंट स्टडी करो, किसी के ट्रैप में मत फंसो, कोई भी पेपर गेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी बैंक का एग्जाम दे करके ही क्वालिफाई किया हूँ, मैं जानता हूँ हाउ कि कोचिंग के भरोसे मत रहो, कोई भी कोचिंग अच्छा खराब का बात वो, इफ यू आर टेकिंग सम मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर यू आर फ्री, आप ले लो, बट माई चैनल इज फ्री, माई टेलीग्राम ग्रुप इज फ्री, बट ये कब तक फ्री रहेगा ये मैं खुद नहीं जानता। Okay, you study, don't make your mind divert towards money, where
स्पेंडिंग, इट इज इन्वेस्टमेंट। आप कहीं से भी लेके पढ़ रहे हो पढ़ो, बट प्रूडेंटली पढ़ो, टाइम मैनेज करो। दैट इज द देखो, एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होता है पता है? किस तरह से क्वालिफाई करते हैं? क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि आप क्वांट पढ़ रहे हो 3 आवर्स, दूसरा भी आप 4 आवर्स पढ़, नो नो। क्वांट रीजनिंग तो मोस्ट ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट कर सभी तैयारी करते हैं। आपको फोकस करना है कि आपके जो कंपटीटर्स है ना, वो कहाँ नहीं फोकस कर पाएंगे, या कहाँ पे कम फोकस करेंगे, या कहाँ पे वो भी फोकस करेंगे और हम भी करेंगे, बट हम उनसे बेटर कर सकते हैं। वो 400 पेजेस पढ़ के जाएंगे, तब 25 करके आएंगे। हम 50 पेजेस पढ़ के जाएंगे और 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो भी करेक्टली। तो दिस इज द ट्रू सिलेक्शन। लेबर मत करो ना, स्मार्ट वर्क करो। क्योंकि आवर्स ऑफ स्टडी का कोई लिमिट नहीं है। आप स्टडी करते रहोगे, मटेरियल कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसे ट्रैप में मत फंसो कि समवन इज ब्रिलियंट और नॉट समथिंग। मोस्ट ऑफ तो ऐसे भी टीचर्स हैं जो अभी तक कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कब छोड़ा क्या छोड़ा। ठीक है, तो ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग सेइंग एनीथिंग इज बैड, बट आप अपने हिसाब से तैयारी करो, खुद सोचो कि ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, इन यू नीड एनी गाइडेंस, यू डायरेक्टली मैसेज मी और टेलीग्राम, or or comment on my YouTube video. I will answer it. Okay. Happy learning. Or I will very soon share uh, are the general banking topics, and also I will discuss RBI circulars once again. Hmm? Okay. Have a nice learning with